Hello dear Aries, welcome to my channel Karmic Sage. Today we are going to talk about our tarot card prediction for the year 2021. So finally we are going to step into 2021. I hope we all are excited about it. And before I begin, as usual, I request you all to please do like and subscribe my channel. Do share my videos also. Thank you so much for doing that. And I have another I have one more thing to say here. Like I have been getting requests from people, I should also be telling my reading in Hindi. But because these are intuitive readings, these are not just card reading. I just don't simply read the cards. Just don't blankly read the cards, but I connect with them, and that is how people are really also commenting that they are more appropriate. I mean, they are able to relate to the reading also. So it will not be easy for me to do this intuitive reading again in Hindi language. Okay, so what I have decided is instead of disappointing you all, or I will try to read both in Hindi and English at the same time. So this channel is now going to be this reading is now going to be English kind of. I hope that will help you. So आज जैसे मैंने कहा है कि बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं इंग्लिश हिंदी के लिए भी, और जैसे मैं बता रही थी इंग्लिश में कि सेम थिंग मुझे मैं डायरेक्ट कार्ड से कनेक्ट करके उसके मतलब को बताती हूँ। ऐसे नहीं कि सिर्फ जो कार्ड पे लिखा हुआ है वही बता दिया। तो मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं एक बार इंग्लिश करने के बाद फिर हिंदी करो या हिंदी करने के बाद फिर इंग्लिश करते टाइम पर ये कनेक्टिविटी नहीं आएगी कार्ड्स में, कार्ड्स को से मेरे मुझे। तो मैं कोशिश करूँगी कि एक ही वीडियो में आपको बता सकूँ, एटलीस्ट मैसेज बता सकूँ कि क्या मैसेज है कार्ड्स का आपके लिए। और इंट्यूटिव तो जब कनेक्टिविटी हो जाती है तो तब मैं ठीक से बता पाती हूँ प्रेडिक्शंस अपने। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं हिंदी में भी बता सकूँ कि ये प्रेडिक्शन क्या है आपके लिए। तो शुरू करते हैं फिर आज का अभी का हमारा 2021 कैसे रहेगा। एंड ये वीडियो रिलेटेड है फॉर करियर एंड फॉर करियर एंड प्रोफेशन, फॉर करियर एंड फाइनेंस। तो आप या आप प्रोफेशन में हो या फिर आप जॉब करते हो और बिजनेस करते हो, तो ये सब रीडिंग उससे रिलेटेड रहेगी। तो वी हैव योर कार्ड्स रेडी विद अस। दिस इज द करियर एंड फाइनेंस रिलेटेड रीडिंग फॉर द ईयर 2021. So please note down what are the suggestions been that have come out through this card also. Yeah, so let's begin our reading for this year 2021 Aries. I hope you all are excited now. Okay, I have your first card, energy card. Yeah, so this is the first card, energy card, that is angel of balance. angel of balance आया है आपको फर्स्ट कार्ड। जो एनर्जी कार्ड है यहाँ पर, जो मैंने आपके लिए एनर्जी कार्ड निकाला है, angel of balance। और यहाँ पे angel of balance is telling us कि we should be, it is suggesting us say कि we have to maintain a balance. It seems that you are going to feel yourself stressed out and feel sometimes you may feel lost also, okay, you are not able to understand what is happening. So this angel of balance, it will bring you that balance again in your life, in your career life, in your finance life. So at the same time, this card is also telling me intuitive mein, this card is also telling me that you need to maintain your finance balance also, not overspending or not over earning. I mean, whatever you are earning, when you are spending something anyhow, usually it happens ki we tend to spend more than our earnings, and we may have to go for some we may have to go and borrow money. So the avoid these things, dear Arians. Try to maintain that balance here. See that your expenses should not exceed your income. At the same time, also focus on savings. This is card is here to tell us, here to advise us that we should also focus on our savings. So let me tell you again in this Hindi also. So ये जो कार्ड है एंजल ऑफ बैलेंस का, दिस इज टेलिंग अस, ये कार्ड बता रहा है हमें कि वी शुड फोकस, हमारा फोकस ना कि सिर्फ स्पेंडिंग मनी खर्चा करने पर ही नहीं, जो आ रहा है और जा रहा है, मतलब जो हम कमा रहे हैं और जो हम खर्चा कर रहे हैं उसमें बैलेंस होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि आपको कोई लोन की ज़रूरत नहीं पड़े इस साल, और कोशिश कीजिए कि आप कुछ बचा भी सके साथ में। तो ये बैलेंस
बैलेंस आप बना के रखना है फाइनेंशियली ये साल आपको। और एट द सेम टाइम जब आपकी जॉब है या प्रोफेशन है, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें भी बैलेंस बना के रखिए। ऐसे नहीं कि एकदम पीक पे चले गए, एकदम जॉब छोड़ दिया, या फिर चेंज कर दिया कोई प्रोफेशन आपने, एकदम आपका बिजनेस चेंज कर दिया, तो आप ऐसे इमीडिएट कोई काम ना करें। नो, थोड़ा सोच कर, थोड़ा समझ कर आगे बढ़ते जाएं उसमें। तो चेंजेस ना इमीडिएटली आप अडॉप्ट करना नहीं है। आपको एकदम कोई बता दिया कि ऐसे नहीं, ये करेंगे, ये जॉब अच्छा है वहाँ पर, व्हाई डोंट यू ट्राई दिस, तो आप इमीडिएटली कहीं पर शिफ्ट मत होइए। उसको ठीक से एनालाइज कीजिए, तभी आगे बढ़िए। तो ये बैलेंस रखने के लिए की ज़रूरत है आपको 2021 में। पूरी तरह से आपके फाइनेंसेस पे आपको बैलेंस रखने की ज़रूरत है। या तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एरीज फॉर यू। नाउ begin with our reading. I will be telling you that, yeah, your card has come as moon. So मून कार्ड ये बताता है हमें कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो सिचुएशन के बारे में, आपके करियर के बारे में, आपके काम के बारे में या फाइनेंस के बारे में आप थोड़ा कंफ्यूज हो। तो आपको ना कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपका आपके सामने क्लैरिटी नहीं है आपको, तो आप ऐसे सिचुएशन पे हो जहाँ पर आपको ना समझ नहीं, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करना चाहिए आगे आपको। सो दिस इज वेयर यू नो यू फाइंड कि ये भी करेंगे और ये भी ओके, तो मैं आज जॉब में ये भी करूंगी, मतलब मेरा टारगेट ये है, मेरा ये है, और लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हाउ टू गो दैट वे, उस तरफ जाए कैसे, राइट? सो दिस इज व्हाट आई एम फाइंडिंग अ कंफ्यूजन इन यू। सो यू आर मोर लाइकली गोइंग टू बी कंफ्यूज्ड थ्रू आउट दिस ईयर while dealing with in your career areas. Nothing to worry. I think इसीलिए हमें ये कार्ड आया था, एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड. That is why we have that card where angels are advising me, where this energy is advising us, angelic energy is advising us to maintain that balance, isn't it? So let's see what other cards are here for us. Okay, so I have from the past, I have Eight of Wands here, Eight of Swords, sorry, and in the present I am seeing Queen of Cups again, and in the near future I have Five of Swords card. Okay, so Aries, let me explain you what does this mean. So हमारा जो कार्ड है Eight of Swords. ओके, सो एट ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड्स जो हमारे रिलेटेड पास्ट में भी पास्ट फ्यू मंथ्स से आप ना जस्ट ब्लाइंडली जा रहे हो, मतलब जिस जो भी है काम, यू आर जस्ट डूइंग इट। आपने किसी के ऊपर भरोसा किया हुआ है या किसी की एडवाइस ली है, तो प्लीज एरियस डू नॉट कंसिडर इट ब्लाइंडली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आप ना कोई चीज़ समझ नहीं पा रहे हो। ये टाइम आप ऐसे आए हैं आप 2021 में, फ्रॉम 2020 यू स्टेप्ड इनटू 2021 नो with some unclear mind, where things are not clear, where you are little confused and you're not understanding what to do now. You are like blindfolded and you're just simply going like that. So Aries, this is how you are entering into 2021. But still, let us see what this 2021 has for you now. Now, as soon as you are getting into 2021, what I am seeing here is Queen of Cups card. सो दिस इज अगेन आई एम सीइंग स्टेबिलिटी। तो जो आप कंफ्यूज माइंड से 2020 से 2021 में स्टेप कर रहे हो, लेकिन ये फ्यूचर, ये ईयर आपको स्टेबिलिटी भी देगा। दिस इज गोइंग टू प्रोवाइड यू दिस स्टेबिलिटी इन योर कैरियर अगेन। एंड एट द सेम टाइम 2021 में जब आप स्टेप कर रहे हो, नाउ यू मे स्टार्ट फीलिंग कि नो ओनली अर्निंग, ओनली मनी इन अर्निंग्स और फाइनेंसेस आर नॉट द are not ultimately the achievement for you. You are now going to look for broader perspective of it. तो सिर्फ पैसे कमाना ही ये लक्ष्य नहीं है आपके, आपके नो टारगेट नहीं है आपका अभी। और बिजनेस हो या जॉब हो, तो पैसे कमाना ही आपका टारगेट नहीं होगा अभी। आप ये भी देखोगे कि मैं और कैसे ग्रो कर सकती हूँ, और कैसे ग्रो कर सकते हैं, या फिर नो आप ये भी देखोगे कि मैं और बेहतर कैसे हो सकती हूँ। तो ये सब चीज़ें आपके उसमें चलेंगे, आपके दिमाग में चलेंगे अभी कि हाउ टू ग्रो नाउ, हाउ टू एक्सपैंड नाउ। अगर इसमें आपको इन्वेस्ट भी करना पड़ रहा है, तो यू आर ऑल्सो रेडी टू इन्वेस्ट इन इट, राइट? सो these things what I am seeing here, and this is really a good sign because now you are thinking from a broader perspective here in the year 2021 to begin with. Okay, now moving forward, what I am seeing is you may have to face some
argument, you may have to face some negativity. It is more likely because of your because you are holding yourself एरीज, या तो मैं जो कह रही हूँ कि हाँ, आप अपने आप को अभी भी होल्ड कर रहे हो और अभी भी आप ये सोच रहे हो कि अगर आप जो कर रहे हो वही सही है, तो ऐसा नहीं है। सी यू, यहाँ से हमें माइंडसेट चेंज करना ज़रूरी है एरीज फॉर यू। तो अगर आपको नो लॉन्ग रन में, आपको लॉन्ग रन के सक्सेस के लिए, लॉन्ग सक्सेस के लिए आपको ये ज़रूरी है कि आप ये सोचिए कि जो मैं कह रही हूँ वो सही है, ऐसे नहीं। इससे क्या है, ईगो आपका इफेक्ट करेगा, ईगो विल प्ले द रोल हियर, तो डोंट अलाउ दैट टू हैपन। Okay, Aries, I hope you are getting my point. So Aries, please understand that, try to avoid this egoistic behavior, और शायद आप किसी के ऊपर, आपकी टीम के ऊपर डोमिनेट करना चाहेंगे, या मतलब आप कर रहे हो ऑलरेडी डोमिनेट आपकी टीम के ऊपर, तो ये भी अवॉइड करिए। और नो आप ये सोच रहे हो कि इसको कुछ नहीं आता है, मतलब मेरे टीम में ये मेंबर ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, एंड जस्ट उन्हें ऐसे ही कुछ भी बोल देना, बिकॉज यू हैव द अथॉरिटी नाउ, वेयर यू आर इन अथॉरिटेटिव पोजिशन, तो यू फील दैट यस यू कैन डिक्टेट टर्म्स। दिस एटीट्यूड यू हैव टू चेंज अ लिटिल, इट मे नॉट बी, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका ये बहुत ज़्यादा होगा एटीट्यूड, बट जो थोड़ा बहुत भी है तो प्लीज़ रेक्टिफाई दिस। ये कोशिश करिए कि आप ये चेंज कर सके अपना बिहेवियर। See, I'm telling you very frankly, very no, whatever I'm able to connect with the cards, I'm telling you very clearly and very openly. So, dear Arians, don't take it, yeah, don't take it in a negative way. Take it in a positive way. Why I'm telling you all these things? Because you should able to improve yourself then. Yeah. So, इसीलिए I'm telling you this way. तो आप कोशिश करिए कि आप ये ईगो अपना बाजू रख कर काम कर सके। हाँ, तो तभी आप ठीक तरह से बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएंगे एरीज। देन आई हैव नाइट ऑफ वैंड्स एज योर करियर, एज योर एनवायरमेंट हियर, एंड नाइट ऑफ वैंड्स हमें बताता है कि इट इज गिविंग यू new responsibilities, it is giving you, new opportunities here. So Knight of Wands बहुत ही अच्छा कार्ड है, actually it's a very good card for the career, for the finance also. So this card हमें ये कार्ड हमें बताता है कि कोई ना कोई आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी अभी, और या फिर आपकी जो एग्जिस्टिंग जॉब है या बिजनेस है उसमें आपको ग्रो करने का, आपका जो एनवायरनमेंट है जहाँ पे आप काम कर रहे हो, या फिर आपका जो बिजनेस है, जो आपका बिजनेस है, तो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, अभी तक हम बात कर रहे थे इंटरनल की, हमें कैसे बिहेव करना है एंड ऑल, तो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है आपका वो फेवरेबल है अभी आपके लिए, ये ईयर वो फेवरेबल है, और वो आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी देते रहेगा ये साल भर। यू विल बी गेटिंग अपॉर्चुनिटीज थ्रू आउट दिस ईयर। नाइट ऑफ वैंड्स इज देयर इन योर करियर नाउ, तो दिस विल मेक यू नो प्रोएक्टिवली काम कराएगा। वैसे तो एरीज आर नोन, नो दे आर ऑलरेडी प्रोएक्टिव, सो excuse me, so this will allow you to work proactively here again. And seeing the strength card, okay, so there is a guidance here, there is a strength card coming up for you, how you have to behave. As this is the high priest here, and this high priest is telling us that listen to your intuition. So this is suggesting you here, the high priest suggesting you here is, don't just simply go with what others are saying, what others are suggesting you. And हमने already देखा angel of balance card में कि we shouldn't just simply believe on someone, right? So don't take the advices easily from everyone, so think intuitively also. Think first, give a thought, जो अगर आपको एडवाइस आ रही है या फिर आप कुछ करना चाह रहे हो या आपका कोई डिसीजन है, तो 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर कर उसके ऊपर फोकस कीजिए कि अगर आप ये डिसीजन ले रहे हो, ये अगर किसी का सजेशन फॉलो कर रहे हो, तो ये आप कहाँ तक जा सकोगे आगे, ये आपको कितना बेनिफिट देगा। तो ये आप हमेशा ये साल भर आपको ये प्रैक्टिस करना है। हाई प्रीस्ट इज टेलिंग यू दैट कि आप अपने आप से पहले पूछिए, आप अपने आप से आराम से पूछिए, और तभी आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। तो ये एनर्जी आपके साथ है ये साल भर पूरी तरह से, तो आपको ये गाइड करेगी। तो अगर आप अपने
गाइडेंस, अपने अंदर की एनर्जी के हिसाब से अगर चलेंगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। या and then we have your long-term energy. I mean, for the throughout the years access, we have the magician card, which is such a wonderful card for you, dear Aries. Ultimately, what we have been seeing, what we have traveled, that there is going to be an ego, there is going to be a trust factor, which may not be completely benefit you, which may not fully benefit you again. And then we have seen their prospects also, but we need to perform intuitively, right? So we have to be intuitive about our performance again. But at the end, what the magician card has is here, telling me that, you see, you have the power. Ultimately, you are the atheist, and you have the magician card is saying that you have the power here to behave, to turn the position फ्रॉम द डाउन टू अप। ओके, सो आप जो पलटा हुआ सिक्का है, जो हिंदी में कहते हैं ना, पलटा हुआ सिक्का, ये हमारी जो तख्त है, तो आप उसको पलट सकते हो। अगर आपको दिख रहा है कि आप आप नीचे की तरफ जा रहे हो, तो आप में वो एनर्जी रहेगी ये साल पूरा, और आपकी उसको पलट सकते हो। लेकिन इसके लिए व्हाट आई एम सीइंग दिस टू कनेक्शंस हियर, इसके लिए आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, अपने आप का इंट्यूशन, अपने आप से आपको बात करनी पड़ेगी, अपने अंदर, खुद के अंदर इसको ना सॉल्यूशंस आपको फाइंड आउट करना जरूरी है, एरीज। सो दिस इज व्हाट दिस कार्ड इज सेइंग, मैजिशियन कार्ड इज टेलिंग यू हियर कि यू हैव द पावर। सो ये पावर आपको पहचानना है। दिस इज व्हाट दिस कार्ड सेज, ये पावर के बारे में। नाउ आई कैन एबल टू रिलेट दीज टू कार्ड्स। सो ये कार्ड के बारे में आपको, ये कार्ड का पावर आपको ये एनर्जी देगी। तो ये एनर्जी कैसे मिलेगी आपको? यू हैव टू लिसन टू योर सेल्फ, यू हैव टू फोकस ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। और वैसे भी आपका एनवायरनमेंट, आई मीन वैसे भी आपको ग्रो करने के लिए ये साल अच्छा है। तो ये सब कुछ आप कर सकते हो। आप ग्रोथ, आप अपने बिजनेस में बढ़ा सकते हो, फाइनेंशियली आप ग्रो हो सकते हो। नो, देर आर नो सच अदर कॉम्प्लिकेशंस। एक्चुअली ये पूरे कार्ड्स अगर मैं देखूंगी तो कहीं पर भी मुझे ऐसे फीलिंग नहीं आ रही है कि आपको लॉस हो जाएगा, भारी लॉस है, नो आपकी जॉब चले जाएगी, ऐसे कोई फीलिंग मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही है। एकदम एक्सीडेंटली यू मे लूज जॉब, ऐसी कोई फीलिंग यहाँ पे मुझे नहीं आ रही है। लेकिन समथिंग वेरी स्ट्रांगली इज सेइंग दैट इट इज नाउ अल्टीमेटली ऑन टू यू। आप चाहे तो आपका जॉब चले जाएगा, मतलब आप जैसे बिहेव करोगे उस हिसाब से, आप जैसे डिसीजंस लोगे उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो दिस इज वंडरफुल थिंग, राइट? नाउ यू हैव द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ योर डेस्टिनी, यू आर कंट्रोलिंग योर डेस्टिनी, सो व्हाई नॉट देन परफॉर्म वेल? Yeah, so now you are the power holder of your power, holder of your destiny. So good then, Aries, perform well. That is what I would like to say. I have one more card for you, angelic message and guidance, and then this is from the angels. Believe in magic. See, again we have this card, and we have this card again, the magician card, and even the angels are guiding us to believe in the magic. I read this message for you here. Open your eyes and see the magic that's all around in nature. The fairy of the northern light says that you are part of nature, so you are magical too. It's such a lovely message from the angels, and again they have, no, they could able to sense what we want to hear, what we should be knowing this year. So they are asking us to believe in the magic. That means that you know that there is a magic around you, and there is a magic within you also. You have the power to change the things. You have the power to perform magically. तो बिलीव इन मैजिक कार्ड ये हमें मैसेज दे रहा है कि हमारे पास ही ये सब कुछ पावर, आपके अंदर ही ये सब कुछ पावर। आपको बाहर की तरफ से जो मिलना चाहिए, जो अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, वो मिल रहे हैं, बट आपके ऊपर है अब यहाँ पर। आप ये मैजिक कर सकते हो। आप मैजिशियन हैं आपके अंदर। एक्चुअली ये साल पूरा आप पूरी तरह से अपने आप को बेहतर बना सकते हो, अपने बिजनेस को, अपने प्रोफेशन को आप पूरी तरह से अच्छी तरह से ठीक कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो आप इसमें। तो
आप इस पावर को यूज़ करिए एरीज, दैट इज़ द मैसेज हियर। एंड आई हैव अनदर मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर यू। This final message from the universe, I read this for you. Okay, in every moment, the universe is conspiring to bring me toward right minded thinking and the energy of love. Yeah, I hope this message is, you are able to follow this message, and this is so in sync with all the cards. Right minded thinking and the energy of love is what the universe is providing you. So this is all about the yearly prediction 2021. I hope you all are able to, you were able to follow this reading, and if you have any doubts, please do comment under this video, do share and like my video also. तो एरीज, हाँ, आपको समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी ये भी आने वाले वीडियोस में भी कि बता सकूँ आपको ठीक तरह से अपना रीडिंग हिंदी में भी। तो ये अभी आप फॉलो, आई होप कि आप फॉलो कर रहे होंगे ये मेरा रीडिंग। और अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स है या कुछ क्लैरिटी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। ये आपकी पूरे साल की रीडिंग है, तो आप इसे अच्छी तरह से देखिए। और जो एडवाइसेस हमें मिले हैं यहाँ पर टैरो के थ्रू, थ्रू यूनिवर्स कार्ड्स के थ्रू एंड थ्रू एंजेलिक कार्ड्स के थ्रू, जो गाइडेंस हमें मिली है आप उसे नोट करिए और उसे फॉलो करिए। और आई एम श्योर यू विल be rocking this year, Aries. Yeah, तो ठीक है फिर, then I take a, it's time to say bye, and I see you again in the coming month then later. Okay, and till then I am looking forward for your messages, for your text. Please do connect with me on Facebook and Insta also. I wish you all a very good luck. Take care. Bye bye.